Hi friends, you are welcome in today's class of thermodynamics. But today's topic for the thermodynamics subject is process and cycle. Before starting to tell about process and cycle, I will try to recapitulate you about the state which we covered in our previous session. If you were unable to attend the previous session, you can go to the YouTube and search property state by Atul Bhattar. You will get the link and you open that you will get the video which will cover the previous topic about state and path. Okay. Now, so today we will tell about process and cycle. Why I am telling about previous session? Why? Because the things are interlinked with each other. When you know about state path, then you will come to know about process cycle also. Okay. So before starting today's session, I will recapitulate or remember you about the previous session of state. I hope if you remember, I told you about state. It tells about properties, exact values of properties at one particular point. That is our state. Suppose this is an example. Here, if you will see, here there is a one cylinder inside which there is one yellow color piston. This is your cylinder, blue color is the liquid or fluid, and this yellow color is the piston. So at this first point, let the properties are P1, T1 and V1. दोस्तों अगर आपको याद होगा मैंने अपने पिछले सेशन में बताया था स्टेट क्या होता है कोई भी प्रॉपर्टी की एक डेफिनेट वैल्यू एक पॉइंट पे के स्टेट को दर्शाती है ठीक अब जैसे यहाँ एग्जांपल लिया हमने एक सिलेंडर है उसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है जो ब्लू कलर में मैंने यहाँ दर्शाया है ठीक ये आपका फ्लूइड है कुछ भी हो सकता है ये फ्लूइड मतलब गैस लिक्विड कुछ भी ठीक एयर भी हो सकता है वाटर कुछ भी और ये येलो कलर का जो है ये आपका पिस्टन है ठीक तो आपने यहाँ ऊपर से इस पर फोर्स लगाया यू आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम द टॉप ओके नाउ इस स्टेट पे इसकी वैल्यूज प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हमने एज्यूम की इसकी वैल्यूज है P1 T1 V1 मतलब क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी एक डेफिनेट वैल्यूज है प्रॉपर्टीज की जो है P1 T1 V1 P is pressure T is temperature V is volume now because you are applying force from the top what will happen this piston will try to move downward then piston will try to move in downward direction okay now let us see come to the second picture see here in the second picture now what is difference if you can see this piston is moved slightly downward now this is second point at second point now the values are P2 T2 and V2 आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर में जो आपका पिस्टन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया है तो एक दूसरी पोजीशन आ गई है इस पोजीशन पे जो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज है वो है P2 T2 और V2 ठीक है इन चीज़ों को हमने ग्राफ के थ्रू भी दर्शाया है और आप देखेंगे यहाँ तो आपका XY ग्राफ है ठीक वर्टिकल एक्सिस Y हॉरिजॉन्टल एक्सिस X वर्टिकल में हमने प्रेशर लिया P और हॉरिजॉन्टल में हमने वॉल्यूम लिया है V वैसे ही यहाँ सेकंड पिक्चर में भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ है Y वर्टिकल एक्सिस Y एक्सिस जिसमें हमने प्रेशर लिया है प्रॉपर्टी है जो वैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में X एक्सिस लिया है जो और वहाँ दूसरी प्रॉपर्टी ली है V जो कि वॉल्यूम फर्स्ट ग्राफ में अगर आप आए वापस so you can see that at point 1 the values defined are P1 and V1 now coming to the second picture here you can see point 1 values were P1 V1 as you reach to point 2 now values of the properties are P2 and V2
Now, someone can say, what about T2? Because in this graph, we are showing about two properties. First property P, another property V. So here we are showing about P1 V1 and P2 V2. We are not showing T1 and T2. Okay, because the graph is between two quantities. ओके, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा हमने T1 और T2 क्यों नहीं लिया। ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है उसमें सिर्फ दो ही क्वांटिटीज है, एक प्रेशर है और एक वॉल्यूम है। इसलिए हमने पॉइंट वन में भी प्रेशर और वॉल्यूम लिया है जो कि P1 और V1 है। सेकेंड पॉइंट पे भी मतलब सेकेंड स्टेट पे भी वैल्यूज हमने लिए P2 V2। वहाँ टेम्परेचर नहीं लिए क्योंकि हमने ग्राफ P और V के बीच में बनाया है। ठीक है दोस्तों, नाउ कम लाइक दिस वी विल कम टू थर्ड पिक्चर, मीन्स थर्ड स्टेट। Now what is the position here? The piston is moved further downwards. आप देख सकते हैं सेकेंड पिक्चर और थर्ड पिक्चर में क्या डिफरेंस है। तो पिस्टन आपका और नीचे की तरफ मूव कर गया है और ये थर्ड पोजीशन है। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है that are nothing but P3, T3 and V3. These are the values of the properties in third state or third point. And similarly, we have represented this in the graph as P3 and V3. Likewise, further you move it downward, apply more pressure, you will get fourth point, fourth state. And the properties are nothing but P4, T4, V4. And in this pressure volume graph, PV graph, it is P4 and V4. Okay. So this is the different states, how you are achieving and how you are getting different properties at different states. दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने कैसे अलग अलग स्टेट्स पाए हैं यहाँ और अलग अलग स्टेट्स पे कैसे हम प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो यही इसके स्टेट्स हैं अलग अलग। ठीक, अब क्या, अब ये डिफरेंट स्टेट्स है, इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे या ये कह लें हम इसको कह सकते हैं सीरीज ऑफ स्टेट्स। हम इसको कह सकते हैं सीरीज ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट दूसरा स्टेट तीसरा स्टेट चौथा स्टेट ऐसे ही आगे और भी आते जाएंगे। तो हम कहें अगर सीरीज ऑफ स्टेट्स अगर हैं और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, इफ वी विल ज्वाइन दिस लाइक दिस, ओके, if we will join this series of states then we will found path, we will found path। जब भी हम इन स्टेट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमको पाथ मिलेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल टॉक अबाउट दिस नाउ। पाथ, द नेक्स्ट topic is path. Here again same graph, series of states are there, first, second, third, fourth. Now when you join all these four you will get paths. Okay, next important topic is process. What is process? When a system, जो सिलेंडर और पिस्टन का जो अरेंजमेंट था वो क्या था, वो आपका एक सिस्टम था, that was nothing but system, okay, which went through different states। okay, so when a system passes through different states or equilibrium points and when you join it you will get process, you will get process। how? See here, you have joined all the points, you get the process। ठीक, अब कोई ये कह सकता है सर कि पाथ और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, जब आप कह रहे हैं कि पाथ भी वही है स्टेट्स को ज्वाइन करो प्रोसेस भी वही है, तो क्या है? पाथ एक रास्ता बता रहा है, वो रास्ता कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, वो एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है। कैसे? यहाँ तो आपको चार पॉइंट्स दिख गए पर इसके बीच में भी इंटरमीडिएट में भी सपोज स्टेट वन है या स्टेट टू है, देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ small series of points or states between these। When you join these
then they are nothing but they will tell you about the process. A system when passing through many states, it is forming a process. Now, next important term is cycle. कि भाई साइकिल क्या होती है? जो आप चलाते हैं वही साइकिल नहीं कह रहे हैं दोस्तों. ये साइकिल थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में क्या होती है ये हम जानें. ठीक है, देखिए ये फिगर साइकिल दर्शा है. अब इसमें क्या देख पा रहे हैं? ये जो प्रोसेस वाला फिगर है, ये साइकिल वाला फिगर, इसमें क्या डिफरेंस है? ये जो है सपोज यहाँ से चालू हुआ और यहाँ जाके खत्म हुआ, और इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से चालू हुआ, यहाँ तक गया और वापस आया. समझ पा रहे हैं आप क्या हो रहा है? Here in process what is happening? This graph is starting from here and ending at this point. So this is initial point and this is final point. Okay, but what is happening here? Suppose this is the initial point. Suppose this point is initial point. Let me define it by I. Suppose this is nothing but I. Okay, or here also let it be I. I is nothing but initial point, and here this is the final point. This is nothing but your final point. But what about in this figure? इस फिगर में क्या हो रहा है? ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट कहाँ है यहाँ? क्या बता सकते हैं? चलिए हम वेट कर रहे हैं, आप कमेंट करिए, आंसर दीजिए एज ए कमेंट कि इस साइकिल वाले फिगर में, मतलब ये वाले फिगर में फाइनल पॉइंट कहाँ है? इसमें आपने देख लिया इनिशियल ये है और फाइनल यहाँ है प्रोसेस में. साइकिल में फाइनल कहाँ है ये आप जरा कमेंट करिए हमें. कमेंट के द्वारा इसका आंसर बताइए. प्लीज एवरीवन आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट. Okay, I hope everyone has given the answer. So without wasting the time, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ. आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेस यहाँ चालू हो रहा है. ठीक, ऐसा चालू हुआ, यहाँ गया, फिर क्या हुआ? वापस रिटर्न कर रहा है. वापस रिटर्न करके कहाँ आ रहा है? वापस यहीं पे आ रहा है, इसी पॉइंट पे वापस आ रहा है. तो इस केस में इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट इसी जगह पे है. यही आपका इनिशियल है और यही आपका फाइनल है. ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल कवर कर रहा है. ये कंप्लीट साइकिल कवर कर रहा है. मतलब जब भी योर इनिशियल पॉइंट एंड योर फाइनल पॉइंट इज सेम, वी कॉल इट एज साइकिल. So there are two processes. One from starting to here, then second from here to here. Let it be first process, and this is nothing but second process. Okay? तो साइकिल के बारे में क्लियर हो गया. अब क्या होता है? साइकिल की एक खासियत और है. सपोज यहाँ कोई प्रॉपर्टी है, यहाँ कोई प्रॉपर्टी है स्टार्टिंग में. मैं इसको आपको एक दूसरे नाम से दर्शाता हूँ. सपोज इसको हमने 0 पॉइंट दिया, ओ दिया. ठीक, और इसको हमने आर दिया है. ठीक, ये पॉइंट आपका आर हो गया, तो पॉइंट आपका 0 हो गया. ठीक, अब ऐसे ही इसमें भी ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट आर हो गया. अब यहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? पी सबस्क्रिप्ट में 0. यहाँ पी और सबस्क्रिप्ट में आर. सेम यहाँ पे भी होगा, पी 0 और यहाँ पी आर. ठीक है. अब ध्यान देने लायक बात, very important thing which you should note down. Now in this figure of process what is happening? Suppose I am taking property P, point O, point R. So it is starting from initial point O and ending at point R. अगर इस फिगर की बात करें, ये प्रोसेस जो है इनिशियल 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ हुआ? R पे.
हम प्रॉपर्टी P लेके चल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. What is final? PR. What is initial? PO. This is the difference in the pressure. Final minus initial. PR minus PO. Okay. What about this case? It is starting from O and going to R, again coming back to O. So your final is also PO and your initial is also PO. So in this case of cycle, it will be PO minus initial minus final, or final minus initial. So final is also PO and your initial is also PO. So what is happening? Here you will get some difference value. You will get some value. It can be negative, it can be positive. But here PO minus PO, it will be nothing but 0. So this is an important conclusion. आपको एक important conclusion मिल रहा है. प्रोसेस वाले केस में, इस केस में इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. पर ये सेकंड केस में, साइकिल वाले केस में क्या हो रहा है? पीयू माइनस पीओ दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा? 0. तो वेन एवर देर इज साइकिल, देन ऑलवेज द प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी, प्रॉपर्टी वैल्यू नॉट, difference in property or change in property will be 0. राइट स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स आपने सही कहा. साइकिल वाले केस में क्या होगा? कोई भी चीज अगर साइक्लिक प्रोसेस में है तो डिफरेंस इन प्रॉपर्टी या चेंज इन प्रॉपर्टी हमेशा 0 होगी. करेक्ट. अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना और व्यू करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. अब आगे चलते हैं दोस्तों. पाथ एंड प्रोसेस. जो चीज मैंने आपको पहले बताया था सेम चीज, डेफिनेशन यहाँ है. आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है. Any change a system undergoes from one equilibrium state to another is known as process. मतलब एक सिस्टम कोई भी चेंज हो रहा है एक स्टेट दूसरे स्टेट में, एक सिस्टम में कोई भी चेंज हो रहा है. कब? जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, हम प्रोसेस कहते हैं. और जब हम उन स्टेट्स को ज्वाइन करते हैं, when we are joining those states, then it is path. Okay, so this is the basic difference in path and process. एक्चुअली वही चीज है, पर देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट. ओके, पाथ को फॉलो करते हुए प्रोसेस आ रहा है. ठीक. नाउ डिफरेंट प्रोसेसेस. व्हाट आर डिफरेंट प्रोसेसेस इन thermodynamics? So here is the two graphs shown to you. Okay, now this is first graph. Y-axis pressure represented by P, x-axis volume represented by V. Okay, in second graph, y-axis is represented by temperature T and x-axis can take either enthalpy represented by H or entropy represented by S. अब ये क्या चीज है हम आपको अब बताएंगे. नाउ फर्स्ट ग्राफ की बात आते हैं. ये वॉल्यूम है. ठीक. अब क्या हो रहा है? यहाँ वॉल्यूम की कोई वैल्यू होगी, सपोज V1. यहाँ वॉल्यूम की कोई वैल्यू होगी, सपोज V2. और यहाँ वॉल्यूम की कुछ वैल्यू होगी, सपोज V3. ठीक. ऐसे ही प्रेशर यहाँ P1, यहाँ P2. ये क्लियर हुआ दोस्तों?
So these are the values of pressure and volumes at different points. Now, here in first case, it is written isochoric. V equals to constant means constant volume process. V is constant. It is nothing but constant volume process, also known as isochoric process. The second name of constant volume process is nothing but isochoric process. दोस्तों, अगर हम constant volume process कह रहे हैं तो उसका एक दूसरा नाम होता है isochoric process. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है what is isochoric process or what is constant volume process. Both things are same. How it is constant volume you can see here. At here volume is V1. Okay, first state, when you go here, what is the volume? Here also it is V1 only. Okay, so V1 and V1, both points or both state, it is same volume. So it is nothing but constant volume process. So in PV diagram, PV means pressure volume. From next time मैं हमेशा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को पीवी ग्राफ कहूंगा. ठीक. Now in PV graph, if I am drawing a straight vertical line, this represents nothing but constant volume process or isochoric process. Okay, and in similar way, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं पीवी ग्राफ में, तो ये कुछ नहीं होगा, इसको हम कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. Constant pressure process is also known as isobaric process. दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को ही हम आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं. इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है. बार, दिस बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर. बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर एंड आइसो मीन्स सिमिलर, सेम. आइसो मीन्स सेम, bar is unit of pressure. So which means bar is same, means pressure is same. Also pressure is constant. समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है. कैसे? बार कांस्टेंट है, बार कुछ नहीं है, प्रेशर का यूनिट है. तो अगर हम पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आइसोबारिक प्रोसेस होगा. अगर स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा. ठीक है. अब दूसरे ग्राफ में आते हैं जिसमें टेम्परेचर और एंट्रोपी ले लो या एंथैल्पी ले लो. दो केस, या तो एंट्रोपी ले लो या एंथैल्पी. ठीक है. अब जैसे इस ग्राफ में था वैसे इस ग्राफ में अगर आपने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो ये क्या हो गया, यहाँ अगर आप आओगे तो ये टेम्परेचर है. ठीक. और यहाँ का टेम्परेचर दूसरे पॉइंट का क्या होगा, ये भी T1 ही होगा. ठीक. तो क्या हो गया, टेम्परेचर सेम है. देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इज सेम इन बोथ द पॉइंट्स. बोथ पॉइंट इट इज T1. So temperature is constant. Temperature is constant. This is nothing but isothermal process. Isothermal process. Okay. Is it clear? Okay then. Now in TS diagram, TS means temperature entropy. If you draw a, I am saying temperature entropy, not enthalpy. Here see carefully. ध्यान से सुनिएगा. I am saying TS diagram means temperature entropy. मैं एंथैल्पी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ. जब हम टेम्परेचर और एंट्रोपी TS डायग्राम की बात कर रहे हैं और हम एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब क्या हो गया, यहाँ अगर एंट्रोपी S1 है तो यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो भी S1 ही है. मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई. जब हम स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और जब एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी कांस्टेंट होगी. ठीक है. इसको कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. इसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. ठीक. नाउ इफ आई एम टेकिंग एंथैल्पी, so here this point, what is the value of enthalpy? H1. And at this point value of enthalpy, here also it is
H1, which means enthalpy. Enthalpy is represented by H. Okay, so which means enthalpy is constant, so it is known as isenthalpic process. ठीक है दोस्तों, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको डिफरेंट प्रोसेस मिलते हैं। तो ये 5 प्रोसेस हैं जो दे आर वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो आपको आना चाहिए कि आप कैसे अलग अलग ग्राफ में अलग अलग प्रोसेस को दर्शा पाएंगे, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ साइकिल. What is cycle? I already told you, a system is said to have undergone a cycle if it returns to its original state at the end of process. मतलब अगर सिस्टम सपोज स्टेट 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है पूरा स्टेट 2 पे गया और वापस आके स्टेट 1 पे ही खत्म हो रहा है, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1 एंड एंडिंग एट पॉइंट 1, जहाँ से वो चालू हुआ वहीं खत्म हुआ। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर identical or same. This is nothing but a cycle. Okay, for a cycle initial and final states are identical or same. ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक इसको अच्छे से देखिएगा। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे थर्मोडायनेमिक्स के, तो आप जाइए यूट्यूब में, आप टाइप कीजिए इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स बाय अतुल भट्टर, आपको एक वीडियो मिलेगा। दूसरा वीडियो आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक स्टेट बाय अतुल भट्टर, उसमें आपको थर्मोडायनेमिक स्टेट या प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। ऐसे मैंने तीसरा वीडियो डाला था जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम बाय अतुल भट्टर। आप ये 3 वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चौथा वीडियो समझ में आएगा जिसमें हमने साइकिल और प्रोसेस के बारे में बात और पाथ के बारे में बात की। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड।